Hello students, welcome you all in my class, in the class of Business Studies, class 12, where we were dealing with the concept of directing. Students, the concept of directing is very much interesting because direction is a function where the employees and the manager get interacted with each other in order to reduce the dilemma, or you can say remove the dilemma and contradiction between labor and management. Here, the management as well as the labor both feel interacted with each other and feel satisfied as the labor could avoid the hindrance and hurdles that they are facing while their work, and as well as the management also being satisfied because the various kinds of hurdle regarding the production and the performance of tasks are removed. Therefore, the task become very easier and the organization may easily achieve its organizational goal. So let us talk about the element of directing. Students, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके कुछ मेजर प्रिंसिपल्स की बात हम लोगों ने की थी, और आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए आज अपने एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग को डिस्कस करेंगे। जहां हमने बताया था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्शन फंक्शन में डायरेक्टर या मैनेजर के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं की कैटेगरीज, उन्हीं की इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज, उन्हीं की मेजर हेडिंग्स को हम एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कहते हैं। So let us talk about what are these major activity related to the element of directing. So when we talk about element of directing, that are categorized under four categories, that is supervision, motivation, leadership and communication. Students, these all four topics are ultimately discussed in the previous class. हम लोगों ने शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में जान लिया था कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्या होती है। आज हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स की थॉरो स्टडी करेंगे और जानेंगे इन सारे एक्टिविटीज में, इन सारे मेजर फंक्शन में डायरेक्टर या मैनेजमेंट का जो मेंबर है वो क्या काम करता है, और जो काम करता है अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव कंसीक्वेंस क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉक फ्रॉम द इनिशियल वन, दैट इज सुपरविजन। ओके, सो when we talk about supervision means ultimately the observation or overview. Ultimately it could be said that the management member or the personnel of the management overview all the transactions, all the activity, all the tasks of employees. वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं या जो भी लोग उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो एक्टिविटीज़ उन्हें असाइन की गई हैं, उनकी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस लेवल को चेक करना, उनकी हिंड्रेंस और हर्डल्स को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन में, यू कैन से सुपरविजन में आ सकती हैं। और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट it is a process of, as supervision is a process of guiding all the employees, or you can say instructing also the employees for their work, for their task, and
ascertain the easier accomplishment of goal, easier accomplishment of the goal. Okay, so when we talk about this concept as supervision can be defined as a process of giving guideline or making some instruction, giving some instruction to whom, to the employees or human resource who are working in the organization as per your assigned task, and assure that their accomplishment of the goal, that doesn't matter these goals are ultimately organizational goal or objective of the personnel. These all goals should be accomplished very easily, and therefore the initial objective of the supervision can be said as instruction or guiding all the employees in their task, so that the accomplishment of the goal that are engaged with the organization or the personnel may accomplish very easily. So hope the concept of supervision is very much clear to you. In order to assure that concept is clear to you, the importance of the supervision are also discussed before you. Let us talk about some objectives or the importance of supervision. So let us talk about the importances of supervision. As supervision can be defined as an activity of making overview or making observation regarding the task of the employees. Whatever the tasks are allotted to the employees, it are being overviewed or it should be observed. Then we could say that the task is supervised by the management. Okay, so when we talk about the importances, the importance or the benefit number one is helps to make a friendly environment in the organization. Okay, when the task is being supervised or the task is being observed by the director or the management personnel, the initial objective of supervision are ultimately to make the easier accomplishment of task. So whenever the task being easily accomplished, the objective being easily accomplished, the person engaged in that particular activity also feels satisfied, and whatever the hurdles and hindrances are facing by him or her, that regarding that the guideline or the instruction are also given by the director. यानी जब हमारा डायरेक्टर हमारे एम्प्लॉय को जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे निजात पाने के लिए, उनको दूर करने के लिए उनको गाइडलाइन देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी ये लगता है कि दैट दे आर backed up by the management, and the management is working in his support, not for pointing the errors in their work and the task. So when the harmony or the adjustments take place in the organization, the good healthy working environment take place in the organization. तो सबसे पहला फ़ायदा हुआ हमारी सुपरविज़न का, कि सुपरविज़न की हेल्प से जो गाइडलाइन और जो इंस्ट्रक्शन हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर और मैनेजमेंट के बीच एक अच्छा हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के टास्क परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, एज वेल एज लेट अस टॉक अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट ऑफ
supervision, it act as a bridge, act as a link or bridge, you can say, between employees and management. Okay, so when the organization is said to be linked with the employees, it means that the whatever the expectation level of the organization's management and whatever the feedback and expression of the employees are exchanged with each other. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, जो भी प्लान, जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करता है, अगर उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को डिस्क्लोज कर दे और हमारे एम्प्लॉयज़ अपने टास्क की परफॉर्मेंस को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज कर दे, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर परफॉर्मेंस, एक बेटर डिपेंडेंट परफॉर्मेंस जो है, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और ऐसी कंडीशन में जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर इन मैनेजमेंट और लेबर के बीच एक लिंक का काम करता है, एक लिंकिंग फैक्टर का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन को बताता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, एज वेल एज उनके फीडबैक को, उनके परफॉर्मेंस को बताता है हमारे मैनेजमेंट को कि व्हाट द एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग एंड फीलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल वर्किंग देयर असाइन्ड टास्क। So hope this concept and importance is very much clear to you। जहाँ हमने बताया कि सुपरवाइजर या सुपरविजन हमारे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच एक लिंक का काम करता है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन को हमारे एम्प्लॉयज को समझाता है ताकि वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में सक्षम हो सकें, एज वेल एज जो एम्प्लॉयज हैं उनकी फीलिंग्स और उनकी जो हर्डल फेसिंग्स हैं उनका फीडबैक हमारी मैनेजमेंट को देता है ताकि अगली बार प्लान और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते समय इन चीज़ों का इनफ ध्यान रखा जा सके। सो लेट अस टॉक अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन, दैट इज द सुपरवाइजर गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर to avail on the job training in the organization। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब डायरेक्शन फंक्शन परफॉर्म होता है और सुपरविजन का काम होता है, तो सुपरविजन में हमारे एम्प्लॉयज को ये फील होता है दैट दे आर फेसिंग एंड engage with the on the job training। उनको वर्क प्लेस पे, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे जो भी काम करने में दिक्कतें हो रही हैं, उन दिक्कतों के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए जो मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इशू करता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशू करता है, और ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल की ईजियर अकम्पलिशमेंट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। So therefore it could be said that the employees avail the benefit of on the job training program with the help of supervision। जब सुपरविजन होता है तो लगातार काम करते वक्त जो हमारा मैनेजमेंट है या डायरेक्टर है वो हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करता है, ओवरवैल्यूड करता है, सुपरवाइज करता है, और ऐसी कंडीशन में जब उनके काम की टास्क की परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ऑन द स्पॉट यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन या टास्क परफॉर्मेंस में जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। Therefore the employees are benefited by the on the job training facility with the help of supervision। Hope this importance is very much clear to you। Let us talk about another importance। Another very important thing, that is ascertainment of the supervisor ascertain the predetermined goals while working in the ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हमारे एम्प्लॉय
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उन एम्प्लॉयज़ के टास्क की परफॉर्मेंस की हेल्प से क्या जो प्री डिटरमाइंड गोल है वो अकम्प्लिश हो पाएगा या उसमें कोई डायवर्जन या प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्री डिटरमाइंड गोल है उस गोल्स की अचीवमेंट में हमारे सुपरवाइजर हमारी हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी गोल्स जो भी टारगेट हैं उनको टाइमली अवेल करके और टाइमली अकम्प्लिश करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कराए। Hope this importance related to the ascertainment of predetermined goals and achievement is clear to you। जहां हमने बताया कि with the help of supervision जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं वो अश्योर होते हैं कि whatever the tasks are being assigned to the employees are performing in an easier manner or not। If the task is performing in easier manner, then the accomplishment of predetermined goal also become easier, and there should not be any diversions took place in the situation where the task is performing are ultimately as per the level of expectation। Okay, so these are the major importance of the supervision। Actually some more importance are given before you, we will deal later on। Let us talk about some more importance। As if we talk about some other importances, then we could say that with the help of supervision, the other elements of the directing function could take place in the organization in a smooth and in an ideal manner। यानी जब सुपरविजन जो है अच्छे से होता है, सुपरविजन प्रॉपर तरीके से होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सुपरवाइजर ही खुद ही इंश्योर कर लेता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, दे आर अल्टीमेटली मोटिवेटेड और नॉट, एंड इफ देयर इज एनी लैकिंग ऑफ मोटिवेशन, व्हाट शुड बी द टेंटेटिव मोड ऑफ मोटिवेटिंग, देन दैट इज क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय देम। यानी वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कब किस एम्प्लॉय को किस मीन्स ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत है और उसके हिसाब से उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, अल्टीमेटली इसी तरीके से एक बेटर सुपरविजन इंश्योर कराता है कि जो हमारा लीडरशिप प्रोग्राम है, जब हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारे अल्टीमेट एक्सपर्ट परफॉर्मेंस की इन्फ्लुएंसिंग होती है, यानी एक आइडियल टास्क परफॉर्मेंस की इन्फ्लुएंसिंग होती है, तो ये परफॉर्मेंस तब तक अच्छी नहीं हो पाएगी, तब तक ये लीडरशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट दैट इज नॉट फ्रेंडली एंड फेयर, है ना। हम अपनी टास्क की फॉलोइंग किसी अदर के बेसिस पे तभी करेंगे जब हम उसे एक फ्रेंडली मेंबर माने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, या हम अपनी टीम का एक मेंबर माने, अदरवाइज वी विल नॉट गोइंग टू फॉलो देम ऑल। एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन द बेटर कम्युनिकेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मैसेजेस आल्सो इंश्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एज with the help of directing the communication between organization management and organizational employee took place very smoothly because they feel that both are working for each other। जब हमारे एम्प्लॉयज़ को जो टास्क की हर्डल्स हैं उनको सॉल्व करने में मैनेजमेंट से हेल्प मिलती है, एज वेल एज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साइड से ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अचीवमेंट में हेल्प मिलती है, तो बोथ द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ पार्टी में चेंज फॉर ईच अदर। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कराना चाहेंगे, और एज वेल एज जो हमारी हम मैनेजमेंट है वो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करके उनके बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट को अश्योर कराना चाहेंगे। इन दैट केस वी कुड से दैट द supervision ensure the better performance of other element of directing in a smooth manner, in an ideal manner। So these are the major importance
about the supervision that is held by the directing function or by the personnel who is engaged in the directing function. So let us talk about some more element as we will talk later on, that is the concept of motivation. So let us know what is the motivation and what are the factors that keeps the employee motivated in a organization. So when we talk about the motivation is a very important and a very interesting topic in the related to the element of uh, directing. And in this concern, we deal with the practical life, or you can say we play with the human beings and their emotion to stimulate them and let them perform with the desired activity as per our own wish. यानी मोटिवेशन का मतलब वो सारी एक्टिविटी, वो सारा प्रोसेस जिसमें हम एक इंसान को, एक अदर पार्टी को स्टिमुलेट करते हैं, उसको उसका उत्साहवर्धन करते हैं रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क. एज यू कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ stimulating others to perform a desired course of action. यानी जब किसी इंसान को, जब किसी व्यक्ति को हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करते हैं यानी स्टिमुलेट करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं ताकि वो अपने काम को और ज़्यादा डेस्परेटली और ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली काम परफॉर्म कर सके, तो ऐसी कंडीशन में वी आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ मोटिवेशन. यानी दिस एक्टिविटी आर perform to increase the efficiency and effectiveness of human resource related to an assigned task and for easier accomplishment of goal with a high degree of satisfaction. यानी कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय के साथ एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसकी एफिशिएंसी और जब उसकी इफेक्टिवनेस उसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन काम करने की इच्छा ना होने के कारण वो उस एफिशिएंसी और उस इफेक्टिवनेस का यूज़ नहीं कर पाता है. We do not interested to use the efficiency and effectiveness exist inside of him. और मोटिवेशन हमारे उसी एम्प्लॉय के अंदर उसी हिडन इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने काम को अपने एफिशिएंसी लेवल के ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक ले जा करके परफॉर्म करने की कोशिश करता है और उस काम को टाइमली विथ ऑप्टिमम रिसोर्सेज कंप्लीट करता है. साथ ही साथ उस काम को करते करते अपनी जो इनर सेटिस्फैक्शन है उसकी भी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक चला जाता है. यानी जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर मोटिव के लिए काम करता है और उस मोटिव के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है काम करते करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर देता है जिस ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया गया है और साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे एम्प्लॉय किया गया है. यानी मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यू कैन से दैट मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ completing
or accomplishing the individual goals in order to attain the ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज वेल। यानी जब किसी एम्प्लॉय को इस बात की श्योरिटी दी जाती है या इस बात के लिए स्टिमुलेट किया जाता है कि तुम अपनी इंडिविजुअल मोटिव के लिए काम करो और उस मोटिव को एकम्प्लिश करने में, उस मोटिव को अटेन करने में ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी हेल्प करेगी अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट किया। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है यानी स्टिमुलेट कर रहा है, ही इज कॉल्ड द मोटिवेटर, एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय in a more efficient and effective manner, then it is called motivation. As the process of motivation could be identified in short as the person have some unsatisfied need, so when he or she identified such unsatisfied need, then ultimately उस ऑर्गेनाइजेशन में उस नीड को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर जो टेंशन आती है, मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ नीड एंड एक्सटेंशन ऑफ द विल पावर टू complete the need is known as tension, which becomes the drive, or you can say cause, to complete the task in a more better manner. And when he complete the task, he reach at a level of the satisfied need, and through which the level of tension become reduced. रिडक्शन ऑफ टेंशन। यानी मोटिवेशन प्रोसेस की बात करें तो मोटिवेशन प्रोसेस में हमारे एम्प्लॉय के किसी अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे समझाया जाता है कि उस नीड को पूरा करने की उसे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में वो उसका दिमाग, उसकी जो मेंटालिटी है, उसे उस नीड को पूरा करने के लिए टेंशन ले लेता है, यानी और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब वो उस नीड को पूरा करने के लिए फोकस्ड हो जाता है, देन दैट नीड बिकम्स द ड्राइव, एंड फॉर विच द एम्प्लॉय विल वर्क बेटर, एंड when he or she perform the task in a more effective and efficient manner, then the need of his or her becomes satisfied, and due to that the reduction of tension take place and the employee become satisfied. Hope the concept of the process of motivation is very much clear to you. It will deal in a wider manner in the next class. Till then, take care. Thank you very much.